So today we discuss the DMLT DMAT annual examination 2026 का previous year question यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का पेपर 2 नंबर क्वेश्चन। ओके, और इसका बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। So in first lecture, in lecture number 1, we will discuss the question A, B and C. Okay. So जो भी क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया गया है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ एनी फोर, बट वी विल डिस्कस ऑल ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइमॉर्फिक फंगाई। ओके, सो वी विल डिस्कस a short note dimorphic fungi and all are here 5 mark. Okay, all question are 5 mark question. Okay, this is 5 mark. Okay, so as you can see here, the dimorphic fungi are fungi that can exist in two different morphological form. Okay, so dimorphic fungi are exist in generally two different morphological form depending on the environmental condition. Okay, so especially temperature, they grow as mold. It has the mold यानी कि filamentous form at 25 degree Celsius, यानी कि रूम टेम्परेचर, एंड इट कन्वर्ट एज ए ईस्ट फॉर्म और टिश्यू फॉर्म एट 37 डिग्री सेल्सियस एट बॉडी टेम्परेचर। सो ये जो मोल्ड होता है डाइमॉर्फिक फंगाई एग्जिस्ट इन टू टेम्परेचर। ओके, one is 25 degree Celsius and another is 37 degree Celsius. So in 25 degree Celsius it grow as a mold, it exists as a mold. Okay, and in 37 degree Celsius it exists as a yeast. Okay, it is a yeast form, right? And in mold form it form filamentous form and yeast and tissue form. Clear everyone? So dimorphic fungi, di means two. Okay, what is the means of di? Di means two. Di means two. Morphic fungi यानी कि two different temperature it exist, यानी कि 25 degree Celsius and 37 degree Celsius. In 25 degree Celsius is exist as a mold. In 37 degree Celsius it exists as a yeast form. Clear everyone? Next. Then what is the characteristics? Okay, so the characteristics, it grow as a mold with hyphae and spore in the environment. Okay, whenever it is grow in mold, in the form of mold, it has with hyphae and spore in the environment, and it convert to yeast cell inside the human body, helping them survive and cause infections. So many dimorphic fungi are pathogenic. Okay, uh, many dimorphic fungi are pathogenic and can infect healthy as well as immunocompromised individuals. ठीक है, सो बहुत सी ऐसे डायमॉर्फिक फंगाई होता है जो कि पाथोजेनिक होते हैं, ठीक है। और ये जनरल क्या करता है कि कमजोर जो भी व्यक्ति है उसको संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है। सो इन्फेक्शंस यूजुअली अकर बाय इनहेलेशन ऑफ फंगल स्पोर फ्रॉम सोयल इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। सो इन्फेक्शंस जनरली कैसे होता है? इनहेलेशन ऑफ फंगल स्पोर, ओके, इनहेल करने से फंगल स्पोर फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से, और इन द एनवायरनमेंट। क्लियर एवरीवन? ओके, all are understand the characteristics. Okay, got it everyone? Okay, next, examples of dimorphic fungi. Okay, so what is the examples of dimorphic fungi? पहला हो गया हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ठीक है, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम. So in histoplasma capsulatum it cause the histoplasmosis. Okay, in histoplasma capsulatum it cause the
हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्लियर एवरीवन। देन सेकेंड हो गया ब्लास्टोमाइसिस डर्माटिडिस। ओके, so the blastomyces dermatitis it can cause the blastomycosis, very easy. Okay, blastomyces dermatitis cause blastomycosis. Then coccidiosis imitatis cause the coccidiomyces। जनरली सभी में माइकोसिस ही ऐड हो रहा है लास्ट में, ये सुनो, ठीक है। जैसे कि हिस्टोप्लाज्मा हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस ब्लास्टोमाइकोसिस, कॉक्सिडियोसिस यहाँ भी कॉक्सिडियोमाइकोसिस। ओके, और जो कॉक्सिडियोमाइकोसिस होता है इसको हम अदरवाइज वैली फीवर भी कहते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन। देन फोर्थ इज पैराकॉक्सिडियो ब्रासिलियनिसिस। ओके, so paracoccidio brasiliensis it can cause the paracoccidioidomycosis. Okay, it can cause the paracoccidioidomycosis. Okay, then fifth is टाइलरोमाइकोसिस। ओके, जिससे हम क्या कहते हैं, पेनिसिलियम भी कहते हैं। इट कैन कोज द टाइलरोमाइकोसिस। ओके, सो जस्ट ऐड द माइकोसिस वर्ड। ओके, इन लास्ट जस्ट ऐड द माइकोसिस वर्ड। सो स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ये जनरली होता है। ओके, so the disease are caused as I say here that histoplasmosis, blastomycosis, coccidioidomycosis, paracoccidioidomycosis, talaromycosis. Okay, so these infections mainly affect the lungs. Okay, these all the infections are affect in the lungs but may spread to the skin, bone, liver, spleen and other organ. ये जनरली कहाँ पर होता है, लंग्स में मेनली इफेक्ट करता है, बट अगर स्प्रेड हो गया तो स्किन में भी होगा, बोन में, लिवर, स्प्लीन एंड ऑल अदर ऑर्गन्स में भी पाया जाता है। अंडरस्टैंड, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी डायग्नोसिस। ओके, चलिए हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस को देखते हैं। सो पहले क्या करेंगे हम, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। सो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑन क्लिनिकल स्पेसिमेन, राइट। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑन क्लिनिकल स्पेसिमेन। सो जो भी क्लिनिकल स्पेसिमेन होगा उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। कल्चर कैसे करेंगे, कल्चर एट ए डिफरेंट टेम्परेचर टू डेमोन्स्ट्रेट डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। And histopathological examination of tissue sample, all the tissue sample we occur the histopathological examination, and serological test do whenever the antigen detection, we need the antigen detection, that time we do the serological test. Clear everyone। then molecular method such as PCR in specialized laboratory, ठीक है। so whenever molecular method we need, then PCR will be do, PCR in specialized laboratory will be do. So these are the some laboratory diagnosis. Clear everyone। then what is the prevention? Okay, so if I talk about the prevention, so first is avoid exposure to contaminated soil, bird droppings and bed caps in endemic areas. Clear everyone। use protective mask when handling dust material। whenever you handling the dust material, always use the protective mask, always wear the protective mask। okay, and maintain a good personal hygiene and workplace safely। okay, so always maintain a good personal hygiene, always hygiene maintain करना है, and workplace safely। clear everyone, ठीक है। next everyone, so next if I talk about here, so here complete your laboratory diagnosis। okay, so 2 number A question is complete। next question we have certain on vaccines। अभी हम vaccines के बारे में बात करेंगे, ठीक है। so vaccines क्या होता है, so vaccines are the biological preparation that stimulate the body immune system to produce the protection against specific infection disease। समझ रहे हो कि वैक्सीन्स एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन करते हैं जो कि शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करते हैं। समझ रहे हो, दे कंटेन द वीकेंड, किल्ड और पार्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स which trigger the production of antibodies and memory cell without causing the disease।
ठीक है। सो इसमें जनरली हम क्या करते हैं, जो भी कमजोर है, जो भी वीक है और कील्ड है, ठीक है, और जनरली द पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, द पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं विच ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, ये क्या करता है, ये शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है कि बिना रोग पैदा किसी भविष्य में उस रोग का सुरक्षा मिल पाती है। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वैक्सीन। ओके, सो पहला हो गया लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, सो इट कंटेन द वीकेंड ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें कमजोर किए गए जीवित सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, इसमें जनरली कमजोर करते हैं, वीक कर देते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म, इसको हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मीसल्स हो गया, मॉम्स हो गया, रूबेला वैक्सीन, ओके, दीज वैक्सीन आर द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड दैट मीन्स कील्ड वैक्सीन। ठीक है, जनरल क्या होता है, कील्ड, इसमें जो भी सूक्ष्मजीव होता है उसको हम कील्ड करते हैं। ठीक है, सो कंटेन द कील्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तीसरा हो गया कि टॉक्सोइड वैक्सीन। तो टॉक्सोइड वैक्सीन इट कंटेन द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, फॉर एग्जाम्पल टेटनस एंड डिप्थेरिया वैक्सीन्स। okay, it also in toxoid vaccines also it is also inactivated toxins, clear, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, टिटेनस एंड डिप्थेरिया वैक्सीन्स, क्लियर एवरीवन। देन द फोर्थ इज सब यूनिट और रिकम्बिनेंट वैक्सीन। सो इट कंटेन्स द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पैथोजन। ये जनरली इस कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पैथोजन का होता है, सच एज प्रोटीन और एंटीजन। एग्जाम्पल हो गया हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ओके, सो नेक्स्ट इज कंजुगेट वैक्सीन। कंजुगेट वैक्सीन क्या हो गया, इट लिंक द बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड, ओके, it link the bacterial polysaccharides to protein to improve the immunity। एग्जाम्पल क्या हो गया, हिप वैक्सीन। ओके, दिस इज कंजुगेट वैक्सीन्स। देन द नेक्स्ट इज mRNA vaccines। so mRNA vaccines is use the messenger RNA to instruct cell to produce a harmless antigen and stimulate the immunity। ठीक है, क्लियर एवरीवन। सो mRNA वैक्सीन क्या होता है, इसमें मैसेंजर आरएनए का उपयोग करते हैं, यानी कि सेल को एक हानि रहित एंटीजन मतलब यहाँ पर हम बनाते हैं, समझ रहे हो। दिस इज mRNA वैक्सीन, क्लियर एवरीवन योर टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। ओके, next is mechanism of vaccine। so what is the mechanism? so the vaccines are introduced an antigen into the body। ठीक है, सो जनरली क्या करते हैं, इसमें द वैक्सीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक एंटीजन की तरह। ठीक है, एंटीजन इन द बॉडी। सो द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज इट एज फॉरेन। ओके, द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज इट एज फॉरेन एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, क्लियर एवरीवन। सो मेमोरी बी एंड टी सेल्स आर फॉर्म, जिसमें क्या होता है, मेमोरी बी सेल और टी सेल का निर्माण होता है। सो ऑन फ्यूचर एक्सपोजर टू द एक्चुअल पैथोजन द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड्स रैपिडली एंड प्रिवेंट्स और रिड्यूस डिजीज। ठीक है, सो इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में असली रोग जो भी होगा, ठीक है, एक्सपोजर टू द एक्चुअल पैथोजन द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड्स रैपिडली। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या करता है कि बहुत जल्द ये मतलब प्रतिक्रिया करती है, बहुत जल्द ये रैपिडली रेस्पॉन्ड करता है, which प्रिवेंट्स और रिड्यूस डिजीज। ठीक है, अगर भविष्य में कोई भी डिजीज होगा उस रिलेटेड, तो ये बहुत जल्द क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा उस डिजीज को, उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन्स। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन। ओके, so importance of vaccines। so what is the importance of vaccine?
इट प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज, ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट करता है। इट रिड्यूस द इलनेस, ओके, देन डिसेबिलिटी एंड डेथ, ओके, इट रिड्यूस द इलनेस, डिसेबिलिटी एंड डेथ। थर्ड हो गया, इट कंट्रोल द आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक्स, इट कंट्रोल द आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक्स। फोर्थ हो गया, इट कंट्रीब्यूट टू हार्ड इम्यूनिटी बाय रिड्यूसिंग डिजीज स्प्रेड, ओके। एंड फोर्थ हो गया, इट हेल्प टू एलिमिनेट और इरेडिकेट डिजीज थ्रू वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सो इम्यूनाइजेशन के द्वारा भी हम उसको इरेडिकेट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, सो नेक्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट, examples of common vaccines. So what is the example? Give the examples of common vaccines, okay. So the examples of common vaccines is BCG, okay. So BCG यानी कि जो क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस करता है, ओके। देन OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन्स, और IPV यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन्स, दीज आर फॉर व्हाई पोलियो, दीज आर फॉर द डिजीज ऑफ पोलियो। देन नेक्स्ट वैक्सीन इज DPT, DPT यानी कि डिप्थेरिया, परटूसिस एंड टिटनस, ओके। देन नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस B वैक्सीन्स, ओके। देन क्या हो गया, मेजल्स और MMR वैक्सीन्स। देन क्या हो गया, रेबीज वैक्सीन, एंड देन कोविड-19 वैक्सीन्स, ओके। सो कोविड-19 वैक्सीन क्या कहता है, कोविड-19 का बचाव के लिए, ठीक है, डिजीज फॉर कोविड-19, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्टोरेज, ओके। सो हाउ डू वी स्टोरेज दैट, सो मोस्ट वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन द कोल्ड चेन, okay. So vaccines are generally stored in cold chain, okay, generally in between 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius. So it is storage in 2 to 8 degree Celsius. It maintain their potency, okay, potency, then freezing may damage some vaccines, clear everyone. So this is all about your question number 2V, that vaccines, okay. Then question number 2C, the question is immunodeficiency disease, okay. So the question is here asking immunodeficiency disease, okay, clear everyone. So immunodeficiency disease are a disorder in which the immune system is unable to function properly, okay. So immunodeficiency disease are the disorder in which the immune system is unable to function, it unable to functions properly, it can't functions properly, okay. So making a person more susceptible, okay, making a person more susceptible to recurrent or severe infections, clear everyone. So these condition may be primary or secondary, primary यानी कि genetic, it may be genetic or congenital, okay, congenital, or secondary यानी कि acquired, okay, clear everyone. Okay, so next, just wait a second, I will erase here, okay, clear. Next, so types of immunodeficiency, ठीक है. So we will talk about now the type of immunodeficiency, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर जो प्रीवियस स्लाइड था उसमें हम डिस्कस किए कि प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी. So primary immunodeficiency is present from birth due to the inherited genetic defect, ठीक है. So primary is present generally from birth, okay. So present from birth due to why? Due to the inherited genetic defect, clear everyone. Then it affect the B cell, T cell and phagocytosis or complement proteins, ठीक है, and it usually appear in infancy or childhood, ठीक है. एग्जाम्पल हो गया SCID यानी कि सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी. देन हो गया एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लूबिनरिया, ओके. थर्ड हो गया डाइग्रेज सिंड्रोम, ओके. देन फोर्थ हो गया सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी, ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी
इम्यूनो डेफिशिएंसी। सेकेंड हो गया कि सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। सो सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी में बी डेवलप लेटर in life due to the external factor or disease, okay, and it is more common than primary immunodeficiency. It is more common in primary immunodeficiency. Clear everyone? Next, what is the cause include? So the causes include here the HIV infection leading to AIDS, then malnutrition हो जाएगा, cancer and chemotherapy and radiotherapy, देन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, डायबिटीज mellitus यानी कि DEM यानी कि शॉर्ट फ्रॉम द DEM डायबिटीज mellitus, देन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स. सो दीज आर द कॉज, यानी क्या क्या हो जाएगा, इट मे बी कॉज HIV इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कैंसर भी हो सकता है, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, ओके, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी हो जाएगा, डायबिटीज mellitus हो जाएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग. ठीक है. सो व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर? द क्लिनिकल फीचर इज इट रिकोरेंट द बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन. ठीक है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है. इट फ्रीक्वेंट द रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, पोर ओन्ड हैंडलिंग, persistent fever, chronic diarrhea, failure to the thrive in children, then unexplained weight loss and fatigue. ठीक है. So these are the clinical feature. Clear everyone? Immunocompromise. Okay. Then the laboratory diagnosis. So what is the laboratory diagnosis? पहला हो गया CBC हम करेंगे, complete blood count. ठीक है. देन सेरम इम्यूनोग्लोबिन करेंगे, यानी कि IgG, IgA, IgM लेवल चेक करेंगे. देन वी हैव टू लिम्फोसाइट काउंट एंड सबसेट एनालिसिस. ठीक है, ये हम देखेंगे. देन फोर्थ हो गया कि HIV एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्टिंग करेंगे व्हेन इंडिकेट. ठीक है. देन कम्प्लीमेंट एसे एंड देन मॉलिकुलर और जेनेटिक टेस्ट फॉर इनहेरिटेड डिसऑर्डर. सो दीज आर द लैबोरेटरी डायग्नोसिस. And what is the treatment? Treatment is appropriate antibodies or antiviral drugs for the infections, then immunoglobulin replacement therapy. ठीक है, in selected patients. Then hematopoietic stem cells यानी कि bone marrow and transplantation for the severe inherited disorder. Clear everyone? Okay. Then nutritional support होगा, nutritional support and management of underlying disease. ठीक है. देन वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू द मेडिकल एडवाइस विथ कर्टन रिगार्डिंग लाइव वैक्सीन्स. ओके, सर्टन इम्यूनोडेफिशिएंसी पेशेंट. ठीक है. सो दीज आर द ट्रीटमेंट. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज प्रिवेंशन. प्रिवेंशन इज मेंटेन ए गुड पर्सनल हाइजीन, एंश्योर द बैलेंस न्यूट्रिशन, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर टू इन्फेक्शंस, and follow the recommended vaccine schedule with appropriate, then seek yearly medical care for the requirement unusual infections. Okay, clear everyone? Then next. ठीक है. सो यहाँ पर हम just wait a second here. Now you can see here, and the next is question number D, यानी कि short note on giardia. ठीक है. So we will talk about now the giardia, right? Okay. So just wait a second here. So giardia is a flagellated protozoan. Okay. So as you can see here that giardia it is a flagellated protozoan. Okay. Flagellated protozoan parasite that infects the small intestine. Okay, it is infects mainly the small intestine. Okay, and it causes the giardiasis. It generally causes the giardiasis. It is a common intestinal disease that characterized by diarrhea and malabsorption. Okay, what it causes? It causes diarrhea and malabsorption. So the species most commonly responsible for the human infection is Giardia lamblia. Okay, so Giardia lamblia is the most. Okay, so in human infection is that Giardia lamblia. Okay, which is also known as Giardia intestinalis. Okay, or Giardia duodenalis. Okay, clear everyone?
Next, so next we can talk about the morphology. Okay, so what is the morphology? In the form of trophozoid form, it is a pure shaped. It is pure shaped and it is bilaterally symmetrical with two nuclei and four pairs of flagella. ठीक है, so it is generally pure shape होता है और bilaterally symmetrical यानी कि दोनों में equal side होता है bilaterally. Okay, with two nuclei दोनों ही होता है and four pairs of flagella. Okay, flagella 8 होता है यानी कि 4 pairs. It has a ventral soaking disc. Okay, ventral soaking disc present होता है which is mainly helps it to attach the intestinal mucosa. Okay, तो जो भी वेंट्रल सोकिंग डिस्क होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ये जनरली अटैच करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को. क्लियर एवरीवन. और द सेकेंड हो गया सिस्ट फॉर्म. सो सिस्ट फॉर्म इट इज ए ओवल शेप्ड थिक वॉल्ड एंड कंटेन्स अप टू 4 न्यूक्ली. इट इज कंटेन्स अप टू 4 न्यूक्ली. So the cyst is the infective stage. Okay, so question arises here that which of the following is the infective stage? Okay, so the answer is in cyst form is the infective stage and it survives in the environment. Clear. Next is mode of transmission. Okay, so what is the mode of transmission? It is a fecal oral route. Okay, and drinking contaminated water, then eating the contaminated food, and person to person spread due to the poor hygiene. Okay, and the next is transmission through contaminated hand and surface. Okay, so this is all the mode of transmission. थ्रो भाया फेको ओरल रूट हो जाएगा. ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, इफ यू टेक द कंटामिनेटेड वाटर, इफ यू ड्रिंक इट देन you must be suffer from this disease. Then eating contaminated food and due to the poor hygiene. Okay, ये जनरली सारा हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन. क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट हम देखेंगे इसका लाइफ साइकिल. ठीक है, so if I talk about the life cycle, it is the infective cysts are ingested through contaminated food and water. Okay, so as I say already that the transmission is through contaminated food and water. That's why the infective cysts are the ingested through the contaminated food and water. Clear everyone. Okay, got it. So excitation occur in the small intestine. Okay, okay, so excitation occurs in the small intestine which releasing the trophozoid. Okay, it release the trophozoid. So trophozoids multiply by binary fusion. It multiply generally from binary fusion and attach to the intestinal lining. Some trophozoids exist before the leaving of intestine. Clear. And the cysts are the passed in phases. Okay, and can infect the another person. Okay, so this is all about the life cycle. Okay, clear everyone. Next is the clinical feature. So the feature should be watery and full swimming diarrhea, abdominal cramps and bloating, nausea. Okay, then flatulence, then fatty stool. Okay, then weight loss होगा, fatigue and malabsorption. Okay, clear everyone. Then some infected individuals may remain asymptomatic. Okay, so these are the clinical feature. Okay, it may be nausea, it may be flatulence, then fatty stool, weight loss होगा. Okay, and some infected individuals may remain the asymptomatic. Okay, कुछ symptoms ही नहीं दिखेगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसका लैबोरेटरी डायग्नोसिस. तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस पहला हो गया स्टूल माइक्रोस्कोपी. सो इन स्टूल माइक्रोस्कोपी इट डिटेक्शन ऑफ सिस्ट or trophozoites in fresh stool sample. Okay, so in stool microscopy we detection of cyst. Okay, we detect mainly from cyst or cyst generally in trophozoid form. In trophozoid we detect the trophozoid in fresh stool sample. Second हो गया stool antigen test. In stool antigen test we detect the Giardia antigen with high sensitivity. We generally detect the Giardia antigen. Okay, then next is duodenal aspirate और biopsy. ठीक है, सो duodenal aspirate और biopsy की अगर हम बात करें तो इट में रिवेल द ट्रोफोजोइड्स इन डिफिकल्ट केसेस. ठीक है, देन हो गया मॉलिकुलर टेस्ट और पीसीआर. ठीक है, so it is used in specialized laboratory for confirmation. It is generally used for the specialized laboratory for the confirmation. If we talk about the treatment, the treatment should be anti-protozoal medication such as metronidazole
okay, tindazole, then nitazoxanide. Okay, so these are the treatment of medicines, and it maintain the adequate hydration and nutrition during the illness. Okay, this is all about. And the last is we have prevention. So the prevention is drinking the boiled or purified water, wash hand thoroughly before eating and after using the toilet, practice good sanitation and hygiene, and wash fruit and vegetables before consumption, avoid swelling water from the untreated lake, river and swimming pool. ठीक है, so these are the prevention. So you must be noticed it, that drink a boiled or purified water, wash hand thoroughly before eating and after using the टॉयलेट, ठीक है, एंड प्रैक्टिस ए गुड सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है. सो दीज आर द प्रिवेंशन. क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट, so next short note is dengue. Okay, the next short note we cover about the dengue. ठीक है, so dengue is a mosquito borne viral infection. ठीक है, so dengue जनरल क्या होता है, it is a mosquito borne viral infections. Okay, so dengue is a mosquito borne viral infection which is caused by the dengue virus, यानी कि DENV. Okay, which belongs to the flavivirus genus. ठीक है, ये जनरल क्या हो गया कि फ्लेविवायरस जीनस हो गया. so it is transmitted primarily by the bites of infected Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquito. ठीक है, so ये जनरली ट्रांसमिट करता है प्राइमरीली द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquito. So if I talk about the dengue is a common in tropical and subtropical region. So it is generally more common in tropical and subtropical region and is a very major public health problem. ठीक है, क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट हो गया इसका कॉजेटिव एजेंट. सो अगर हम कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात करें तो इसका जो वायरस होगा तो डेंगू वायरस यानी कि DNV. और फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली हो गया फ्लेविविरिडी. देन सेरोटाइप की अगर हम बात करें तो सेरोटाइप हो जाएगा DNV1. ओके, देन DNV2, यानी कि DNV मीन्स डेंगू वायरस. ओके, डेंगू वायरस 1, 2, 3 एंड 4. दीज आर द सेरोटाइप. क्लियर. नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है, सो यानी कि मोड ऑफ MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो इट कैन बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो. Mosquitoes usually bite during the daytime. In case of dengue, the mosquito are bite during the daytime, not the night time. ठीक है, it can bite the daytime, especially in the early morning or late afternoon. ओके, ये ज़्यादातर क्या करता है कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर या फिर लेट आफ्टरनून के टाइम पर ये बाइट करते हैं. सो इट कैन रेयरली ट्रांसमिशन में अकर थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ठीक है, क्लियर एवरीवन. दिस इज इम्पोर्टेंट. द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट हो गया इसका क्लिनिकल फीचर. तो क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें, ये जनरल क्या हो जाएगा कि सिम्टम्स यूजुअली अपीयर 4 to 10 days. ओके, सो जनरली सिम्टम्स जो होगा 4 to 10 days के अंदर होगा आफ्टर द मॉस्किटो बाइट एंड इट में इंक्लूड सडनली हाई फीवर. ठीक है, सडनली बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा. ठीक है, एंड सीवियर हेडेक होगा. ठीक है, देन पेन बिहाइंड द आइज. ओके, बिहाइंड द आइज इट शुड बी पेन योर आई एंड मसल्स एंड जॉइंट पेन होगा. नोजिया एंड वॉमिटिंग हो जाएगा. स्किन रैश होगा. फैटिंग एंड वीकनेस एंड माइल्ड ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स एंड नोज. Okay, or in case of severe cases, dengue can progress to dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome, which causing the plasma leakage, severe bleeding and shock. ठीक है, so these are the clinical feature. सडनली बुखार हो जाएगा, सीवियर हेडेक होगा, पेन होगा आई के बिहाइंड में, मसल्स एंड जॉइंट पेन हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, skin rash. Okay, so these are the clinical feature you should be identify that the person is suffering dengue. ठीक है, clear everyone. Next is laboratory diagnosis. So for laboratory diagnosis पहला हो गया कि NS1 antigen test. Okay, so NS1 antigen test it detects early dengue infection.
ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ इलनेस, ठीक है। इट डिटेक्ट द डेंगू इन्फेक्शन यानी कि अर्ली डेंगू इन्फेक्शन विच ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ इलनेस। दूसरा हो गया कि IgM एंड IgG एंटीबॉडी टेस्ट यानी कि एलाइजा थ्रो, ओके, थ्रो एलाइजा। सो IgM एंड IgG एंटीबॉडी टेस्ट इट डिटेक्ट द एंटीबॉडीज produced against a virus, okay, it produced the against a virus, it detect the IgM and IgG। नेक्स्ट हो गया कि RT-PCR, ठीक है। सो RT-PCR की अगर हम बात करें, इट डिटेक्ट द वायरल RNA एंड इट कन्फर्म्स द इन्फेक्शन, ठीक है। इट डिटेक्ट द वायरल RNA एंड कन्फर्म द इन्फेक्शन। नेक्स्ट हो गया कि कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC, ठीक है। सो कंप्लीट ब्लड काउंट, सो इट में शो द thrombocytopenia यानी कि लो प्लेटलेट काउंट। सो इन केस ऑफ डेंगू द प्लेटलेट काउंट इज लो, दैट इट सो thrombocytopenia विल बी अकर। एंड इन केस ऑफ लो वाइट ब्लड सेल काउंट, ठीक है, WBC कम हो जाएगा, उसको हम कहते हैं ल्यूकोपिनिया। अगर ओके, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट इज हेमाटोक्रिट, ठीक है। सो हेमाटोक्रिट क्या हो गया कि इट ऑफन इंक्रीजेस ड्यू टू द प्लाज्मा लीकेज इन सीवियर डिजीज, ठीक है। सो व्हाट इज द लेबोरेटरी डायग्नोसिस इफ आई रिवाइज इट, देन पहला हो गया कि NS1 एंटीजन टेस्ट, ठीक है। इट डिटेक्ट द एयरली डेंगू इन्फेक्शन, क्लियर एवरीवन। IgM एंड IgG एंटीबॉडी टेस्ट यानी कि एलाइजा टेस्ट, इट डिटेक्ट द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द वायरस, ठीक है। Just wait a second, I will change the color. So here you can see that IgM and IgG antibody test ये क्या करता है कि डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज which produced against the virus, ठीक है। देन RT-PCR क्या हो गया कि इट डिटेक्ट द वायरल RNA एंड कन्फर्म द इन्फेक्शन। एंड हम CBC भी करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इट शो द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकोपिनिया, ओके। So this is all about the laboratory diagnosis, clear everyone। नेक्स्ट हो गया कि ट्रीटमेंट क्या हो गया कि नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है वैसे, ठीक है। सो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें कि इसका हो गया नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, ठीक है। सो सपोर्टिव केयर इंक्लूड, तो पहला सपोर्टिव केयर क्या हो गया कि एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एंड हाइड्रेशन, ठीक है। दूसरा हो गया कि हम रेस्ट ही लेंगे। तीसरा हो गया कि फीवर कंट्रोल विथ पैरासीटामोल, ठीक है। अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल लीजिए, यानी कि अवॉइड एस्पिरिन एंड इबुप्रोफेन अनलेस एडवाइज बाय ए डॉक्टर बिकॉज दे में इंक्रीज द ब्लीडिंग रिस्क, ठीक है। इट मे बी इंक्रीज इन द ब्लीडिंग रिस्क। लास्ट हो गया कि मॉनिटरिंग फॉर वार्मिंग साइन एंड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सो दीज आर द ट्रीटमेंट यू मे बी if fever is controlled, if fever is happened then you must be taken paracetamol, ठीक है। and rest must be needed for this disease, ठीक है। तो this is all about the treatment, clear everyone। नेक्स्ट हो गया उसका प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इट प्रिवेंट द मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग द रेपेलेंट्स एंड प्रोटेक्टिव द क्लॉथिंग, स्लीप अंडर ए मॉस्किटो नेट्स where appropriate and remove the stagnant water from containers, cooler, tires and flower pots to prevent the mosquito breeding, okay। So where it may be the mosquito breeding यानी कि the water will be storage, water from the stagnant water will be storage, that is the container part हो गया, coolers part हो गया, tires हो गया, okay। So it prevent the mosquito breeding, ठीक है। So it keep the surrounding clean and support the community mosquito and control the major, ठीक है। So this is all about the prevention। So the prevention you must be sleep under the mosquito net, clear everyone। next हो गया लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। that is of measles, okay। so write a short note about from the measles। so measles is it is a highly contagious viral disease, it is a highly contagious viral disease which is caused by the measles virus, ठीक है। so measles is caused by measles virus, a member of the paramyxoviridae family, ठीक है। it is a member of paramyxoviridae family, it mainly affects the children but can occur at any stage, ये generally affect करता है चिल्ड्रंस को
but it may be occur at any age in on vaccinated individuals, जो भी वैक्सीन नहीं लिए होंगे, ठीक है, तो उनको ये हो सकती है। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट ये नेक्स्ट हो गया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया कि इट कैन स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ठीक है। ये जनरली स्प्रेड होता है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा ये स्प्रेड होता है फ्रॉम कोफिंग एंड स्नीजिंग। क्लियर। देन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ नाजल और थोराइड सिक्रेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो उसका नाजल एंड थोराइड सिक्रेशन अगर उसके ऊपर जाएगा तो फिर ये ट्रांसमिट हो सकता है। द वायरस स्प्रेड इजीली इन क्राउडेड प्लेस, अगर ज़्यादातर क्राउडेड प्लेस जो भी होगा, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े टाउन या बड़े बड़े शहर में ये ज़्यादातर हो सकती है। तो ठीक है, ये वायरस ज़्यादातर वहाँ पर इजीली स्प्रेड करता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर। तो अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें, ये इसमें क्या होगा, हाई फीवर आएगा, कॉफ होगा, ओके, देन रोनी नोज, ओके, देन रेड एंड वाटरी आइज हो जाएगा, देन कॉप्लिक स्पॉट यानी कि स्मॉल व्हाइट स्पॉट्स इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर क्या हो जाएगा, स्मॉल व्हाइट व्हाइट स्पॉट देखने को मिलेगा, इसको हम कहते हैं कि कॉप्लिक स्पॉट। क्या कहते हैं उसको हम, कॉप्लिक स्पॉट। Then a red maculopapular rash that start on the face and spread to the body. Okay. Then weakness and loss of appetite. ठीक है। so these are the clinical feature, जिसमें क्या होगा, बुखार आएगा हाईली, देन कॉफ होगा, रनी नोज होगा, ओके, देन आईज जनरली रेड एंड वाटरी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर। ओके, so just wait a second, I will change the color here. नेक्स्ट इज लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, इट डिटेक्ट द मेजल्स स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडीज बाय थ्रू एलाइजा। क्लियर। सो RT-PCR फॉर द वायरल RNA डिटेक्शन। ओके, अगर हम उसको डिटेक्ट करें, अगर हम डिटेक्ट करेंगे कि वायरल RNA डिटेक्शन को, तो हम RT-PCR ही करेंगे, ठीक है। Then virus isolation from thorax swab or nasopharyngeal specimen is specialized laboratories. Clear? So these are the laboratory diagnosis. Through we can do the ELISA and the measles specific IgM antibodies. नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन। सो कॉम्प्लिकेशन इज ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, एनसेफेलाइटिस, ठीक है। एनसेफेलाइटिस मीन्स ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी कि ब्रेन इन्फ्लामेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एनसेफेलाइटिस। क्लियर एवरीवन। देन सीवियर डिजीज इन malnutrition and immunocompromised individuals. Okay, clear everyone. Next is prevention. Prevention क्या होगा कि immunize with the MMR मीन्स measles, mumps and rubella vaccines, ठीक है। हम इम्यूनाइजेशन करेंगे यानी कि वैक्सीन देंगे, और measles containing vaccines, ठीक है। देन आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स टू रिड्यूस द स्प्रेड, देन गुड हाइजीन एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन करेंगे हम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट कैसा है, ठीक है। सो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट। आज तो ट्रीटमेंट ही इसका नहीं आया है, जस्ट उसका सपोर्टिव केयर करेंगे हम। सपोर्टिव केयर इंक्लूड्स रेस्ट, फ्लूइड्स, फीवर कंट्रोल एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ओके, देन विटामिन ए supplementation is recommended in many children with measles to reduce the complication. Okay, so these are the supportive treatment. इसका कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, तो जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी हम करेंगे, ठीक है। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट, ओके, सो ये था हमारा शॉर्ट नोट का, ठीक है। यहाँ पर हम कंप्लीट हो गया शॉर्ट नोट पार्ट। सो जो अगला लेक्चर होगा यानी कि लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आज तक लिए इतना ही है। ओके, सो वी विल कंप्लीट दिस लेक्चर हियर। So if you understand the lecture, then obviously like the video and subscribe my channel. Okay, so thank you.